محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں اجر ہے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی شہوت پوری کی، اس میں اجر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے اور تم کو اس سے خیر کی امید بھی ہو، اتنے میں وہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام سے اجتناب کر. بس اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو زندہ رکھے گا اور چاہا تو اس کو فوت کر دے گا، اور اس میں تیرے لیے آغاز سے خبری نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. لوکل باڈی انتخابات کے لیے فہرست رائے دہندگان الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تیار کی گئی. اعتراض ہو تو رابطہ کیا جائے. ایڈیشنل کلکٹر انکت کمار. پسماندہ طبقات کی بھلائی و ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات ضروری. صرف ایک بل کی منظوری اور مرکز کو روانگی کافی نہیں. MLC کے کویتا. میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے مسلم قبرستانوں کا شب برات کے پیش نظر کیا دورہ. جاری کی ہدایتیں. خصوصی اقدامات جنگجو طریقے پر جاری. اب خبریں تفصیل سے. ضلع پریشد انتخابات کی فہرست ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تیار کی گئی. سیاسی جماعت کی رہنماؤں کو اس حوالے سے اعتراض ہو تو رابطہ کیا جائے. ایڈیشنل کلکٹر انکت نے ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ منعقد کی اور خطاب کیا. ضلع دفاتر کے کمپلیکس میں تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلکٹر انکت نے میٹنگ منعقد کی. اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر نے سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ ضلع پریشد علاقائی حلقہ انتخاب کے انتظامات کے حصے کے طور پر تیار کردہ پولنگ اسٹیشنوں کی فہرست کی جانچ کرے اور اگر کوئی تبدیلی یا اضافے کی ضرورت ہو تو تجویز پیش کی. انہوں نے یاد دلایا کہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو ضلع کے 31 منڈلوں اور ان کے دائرہ اختیار میں آنے والی تمام گرام پنچایتوں میں فہرست کا اعلان کیا گیا تھا. انہوں نے وضاحت کی کہ پولنگ مراکز کی مسودہ فہرست ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے بعد تیار کی گئی. 31 منڈلوں میں 307 MPTC سیٹیں اور 8,51,770 ووٹر ہیں. ان میں سے 400 سے کم ووٹرز والے 122 پولنگ اسٹیشن، 500 سے کم ووٹرز والے 362 پولنگ اسٹیشن اور 750 ووٹرز والے 1080 پولنگ اسٹیشن. ایڈیشنل کلکٹر نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو MPTC سیٹوں کی تعداد، ہر منڈل میں کتنے ووٹر ہیں اور نئے تشکیل شدہ منڈلوں سمیت تمام 31 منڈلوں کے لیے کتنے پولنگ مراکز کی نشاندہی کی گئی کے بارے میں بتایا. ڈرافٹ لسٹ پر کسی قسم کے اعتراضات سے آگاہ کرنے کی درخواست کی. ایڈیشنل کلکٹر نے بتایا کہ MPDOs نے پولنگ مراکز کی فہرست پر اعتراضات حاصل کرنے کے لیے جمعرات کو تمام منڈل پریشد دفاتر میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ منعقد کی.
अगर कोई एतराज़ात है तो उन्हें दूर करके पोलिंग मराकज़ की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। इस मीटिंग में जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सायागौड़, डिप्टी सीईओ सायन्ना, तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रेलवे डीएसपी श्रीनिवास राव का निजामाबाद दौरा, रेलवे मुसाफिरीन के जेवरात, रकम, कीमती सामान की हिफाजत करने ओहदेदारों को दी हिदायत। रेलवे डीएसपी श्रीनिवास राव ने रेलवे पुलिस और ओहदेदारों को हिदायत दी कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी के वाक़ियात को रोकने के लिए इक़दाम करें। डीएसपी श्रीनिवास राव ने हैदराबाद का निजामाबाद रेलवे स्टेशनों का दौरा करते हुए रिकॉर्ड चेक किया और रेलवे पुलिस को हमावक्त चौकस रहने की सख्त हिदायत दी। रेलवे आरटीसी मुसाफिरीन तवज्जो दी। निजामाबाद रेलवे जंक्शन से मुख्तलिफ इलाकों को सफर करने वाले मुसाफिरीन चौकस रहे और सफर के दौरान एहतियाती इक़दामात रूबे अमल लाए। निजामाबाद जिले के सरहद पर महाराष्ट्र रियासत होने की वजह से यहाँ रकम, वॉलेट, बैग सरखा, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी की वारदातें ज्यादा हो रही। मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो सफर के दौरान अपने साथ कीमती सामान, तलाई जेवरात, बड़ी रकम ना रखें और अपने गले में पहनी हुई तलाई चेन को ढांक कर रखें। अलावा से ट्रेन के रुकने पर हरगिज ना खड़े रहे, खिड़कियों की सिमत बैठने वाले मोहतात रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि मुसाफिर सफर के दौरान कीमती जेवरात, नकद रकम को अपने बैगों में ना रखें और अपने सफर को आरामदायक, खुशगवार बनाने एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। रमजान मुबारक के पेश नजर मसाजिदों के पास साफ सफाई, बिजली, पानी और अफ्तार के वक्त ट्रैफिक के मसाइल दरपेश ना होने के लिए साबिका वार्ड मेंबर शेख अकबर की क़ियादत में एक वफद ने सब कलेक्टर किरण माई को पेश की तहरीरी याददाश्त। साबिका वार्ड काउंसलर शेख अकबर की क़ियादत में एक वफद ने आज बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण माई से मुलाकात करके एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालिबा किया कि आने वाले रमजान मुबारक के महीने में मसाजिदों के पास साफ सफाई, बिजली, पानी और अफ्तार के वक्त ट्रैफिक के मसाइल दरपेश ना हो। इस पर सब कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि मुतल्लिका महकमे के आला ओहदेदारों से एक इजलास मुनक़िद करके ओहदेदारों को हिदायत दी जाएगी। इस मौके पर साबिका वार्ड मेंबर लईक, खादर, इरफान, अमजद खान और दीगर भी मौजूद थे। आज बांसवाड़ा माइनॉरिटी की तरफ से सब कलेक्टर मैडम से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त दी गई, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि अभी माह सियाम 1 या 2 तारीख से शुरू होने वाला है मार्च की, उसको जहन में रखते हुए एक मीटिंग रखी मैडम, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट को इनवाइट करिए, जिसमें म्यूनसिपालिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो लोग सबको बुला के मीटिंग रखे। फुल 2 टाइम पानी म्यूनसिपालिटी की तरफ से और तमाम मसाजिद बांसवाड़े में जितने मसाजिद है वहाँ पे सैनिटेशन का, ब्लीचिंग पाउडर सब और डेली कचरे की गाड़ी आना, वहाँ पे साफ सफाई का ख्याल रखे बोल के बोले। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट वालों को भी हम लोग मैडम से डिमांड करें कि इफ्तार के टाइम पे कोऑपरेट करिए, हम लोग को चालान ना मारे और बोलते तो जैसा नो पार्किंग के वास्ते उसके वास्ते डबल रेटिंग बोल के करते हैं, हम लोग थोड़ा इस पर भी हमारा ताउन करिए बोल के हम लोग डिमांड करें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से भी हम लोग डिमांड कर रहे थे कि इफ्तार के टाइम पे, सहरी के टाइम पे और 5 नमाजों के वक्त के टाइम पे करंट फुल सप्लाई दिए टोटल, ये सब मुतालबा कर रहे थे। जिसमें सब कलेक्टर मैडम ने हमें तयक़ुन दिया कि बिल्कुल मैं तमाम ऑल डिपार्टमेंट्स वालों को बुला के एक मीटिंग करके मैं सबको हिदायत देती वो के बोले। इस प्रोग्राम में हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन मौजूद थे, जिसमें कादर भाई, एक्स वार्ड मेंबर लायक, अमजद खान साहब, इरफान कुरैशी, पटेल, सुहेल, मोहसिन और दीगर तमाम मौजूद हिस्सा लिए। पसमानदा तबकात की भलाई और तरक्की के लिए संजीदा और अमली इक़दाम नागुरेज बीसीस को तालीम, रोजगार और सियासी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात की फ्राहमी के लिए अलहदा बिल्स की मंजूरी की रुकने कौंसिल की कविता ने दी तजवीज़। सदर तेलंगाना जागृति रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बीसीस पसमानदा तबकात के लिए सिर्फ एक बिल मंजूर करते हुए मरकज को भेज देना काफी नहीं, बल्कि इस अहम मसले को संजीदगी से हल करने के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करना जरूरी। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए तालीम, मुलाजमतों और सियासी मैदान में मसावी हुकूक की फ्राहमी के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। कि कविता ने कहा कि महज एक बिल काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पसमानदा तबकात के लिए 3 अहम बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए जाने चाहिए ताकि इनके हुकूक को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जा सके। 46% रिजर्वेशन के लिए एक अलहदा बिल तालीमी शोबे में पेश किया जाए ताकि पसमानदा तबकात के नौजवान आला तालीम के मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सके।
सरकारी मुलाजमतों में बीसी तबकात के लिए 46% रिजर्वेशन का बिल लाया जाए ताकि उन्हें रोजगार के मसावी मौके फ्राहम हो सके हासिल हो सके। कांग्रेस हुकूमत ने बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लिहाजा इस वादे को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर एक और बिल पेश किया जाए। कविता ने कहा कि बीसी बिल की मंजूरी के फौरन बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए ताकि बल्दी इंतखाबात में रिजर्वेशन को अमली शक्ल दी जा सके, लेकिन मौजूदा हुकूमत ताखिरी हुर्बे इख्तियार करे ताकि मामला अदालत में चलाया जाए और बाद में इससे दस्तबरदारी का बहाना बनाया जा सके। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी की मुसलसिल जद्दोजहद और पसमानदा तबकात की तहरीक के नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई कि वो बीसी बिल पेश करे। ये पसमानदा तबकात की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के लिए अभी मज़ीद जद्दोजहद की जरूरत है। कविता ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये वादा खिलाफ जमात है जो हमेशा ज़बानी जमा खर्च से अवाम को गुमराह करती रही। कांग्रेस हुकूमत ने एक बार फिर जात पात के नए सर्वे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस अमल को मौसर और शिफाफ बनाने की जरूरत है ताकि तमाम पसमानदा तबकात की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाई जा सके। बीसी सर्वे के लिए अहम तजावीज़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे का वक्त 15 दिन से बढ़ाकर 1 माह किया जाए ताकि तमाम तबकात की इसमें शमूलियत यकीनी हो सके। हैदराबाद में 60% अवाम के घरों तक सर्वे टीम नहीं पहुंच सकी, जिससे सर्वे की शिफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। हुकूमत को री सर्वे के लिए बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। अवामी शऊर बेदार करने के लिए टोल फ्री नंबर का वसी पैमाने पर तशरीह मुहिम के जरिए ऐलान किया जाए ताकि हर फर्द अपनी शिकायत बासानी दर्ज करा सके। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలందరూ కూడా మేల్కొని మరి అందరం కూడా కలిసి ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత 13 ఏళ్ల కింద ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలని అడిగినటువంటి సంస్థ జాగృతి సంస్థ। ఆ తర్వాత ఎవ్వరూ మాట్లాడనప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో మరి బీసీలకు మీరు కామారెడ్డిలో డిక్లరేషన్ చేసిండ్రు, 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున లేవనెత్తి అన్ని రాజకీయ పార్టీలని అందరినీ కూడా కలుపుకొని బీసీలలో పెద్ద నాయకులు గౌరవనీయులు కృష్ణన్న గారిని, వక్లాభరణం గారిని, అట్లానే జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారిని, అట్లా ఇంకా అనేక మంది పెద్దలందరినీ కూడా కలుపుకొని వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకొని వి ప్రకాష్ అన్న గారిని మరి ముందుకెళ్తున్న సందర్భం మీరు చూసిరు। ఇవాళ జాగృతి సంస్థ చేసినటువంటి ఉద్యమాలు ఒక బలమైన ప్రతిపక్ష పార్టీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గలమెత్తినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ చూసి భయపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు బిల్లు పెడతానని నిన్న చెప్పడం అన్నది మనందరికి కూడా గర్వకారణం। ఈ బీసీల బిల్ అన్నటువంటిది తెలంగాణ బీసీ బిడ్డల విజయం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది తొలి విజయం మాత్రమే। కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా మాట ఇచ్చి దోకా చేసేటటువంటి అలవాటు ఉంది। దోకా బ్యాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి బిల్లులో మనం 2-3 అంశాలు ఇవాళ ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం। ఇది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా విని ఆలోచన చేయాలి, ముఖ్యంగా ఇంటెలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా। ఏమంటుంది ప్రభుత్వం? ఒకటే బిల్లు 42% పెట్టి దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించి చేతులు దులుపుకుంటామంటున్నారు, కానీ ఎన్నికలలో అట్లా చెప్పలే। 42% ఇస్తాం రిజర్వేషన్ అని చెప్పినారు। ఇవాళ మేము ప్రపోజ్ చేసేది తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఏంటంటే మీరు 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి। ఎందుకోసం 3 బిల్లులు పెట్టాలి? మీరు 46% బీసీలు ఉన్నారని చెప్పారు, మరి 46% బీసీ ఆడబిడ్డలైనా మగబిడ్డలైనా చదువుకోవడానికి విద్యలో 46% రిజర్వేషన్లతోనే ఒక బిల్లు పెట్టాలి। రెండవది 46% మరి ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగాలలో 46% రిజర్వేషన్తో ఇంకొక బిల్లు పెట్టాలి। పొలిటికల్గా వాస్తవానికైతే మీరు తప్పు లెక్కలు చేసినప్పటికీ వచ్చిన 46% పొలిటికల్ పెట్టాలి రిజర్వేషన్, కానీ మీరు 42 ఎన్నికలలో చెప్పినారు, కనీసం 42%తోనన్నా మీరు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కోసం 3వ బిల్లు పెట్టాలి। ఎందుకు 3 సపరేట్ బిల్లులు పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నామంటే మీరు ఈ బిల్లులన్నీ అన్ని అంశాలు ఒకటే బిల్లులో పెట్టి కేంద్రం మీద తోసేసి చేతులు దులుపుకుంటే మీరు కేవలం మభ్యపెట్టినట్టయితే తప్పితే ఆ వాస్తవమైనటువంటి బెనిఫిట్ బీసీ బిడ్డలకు దక్కదు। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने सुबह की अव्वलीन सातों में मुख्तलिफ डिवीजनों में सफाई के कामों का किया अचानक मुआयना और म्यूनिसिपल अमले से लेकर ओहदेदारान सफाई सुथराई को जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दिया हुक्म।
म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने आज सुबह के वक्त सिटी कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ डिवीजनों में सफाई के कामों का अचानक मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हुक्म दिया कि सफाई सुथराई के कामों को जिम्मेदारी और वक्त की पाबंदी के साथ अंजाम दिया जाए। गटरों को कूड़े और मलबे से पाक रखने का मशवरा दिया। कमिश्नर ने कंटेश्वर, गोल हनुमान और दीगर इलाकों में सफाई के कारकुनों को कई हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार का शहर के कब्रिस्तानों का दौरा, शब बरात के पेश नजर जंगी हुदूद पर साफ सफाई के इंतजाम। म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद दिलीप कुमार ने ओहदेदारों के हमरा शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में शब बरात के पेश नजर किए जा रहे साफ सफाई, रोशनी के इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कब्रिस्तानों में जंगी हुदूद पर जंगली झाड़ियों की कटवाई अमल में लाए, कचरे की नकासी, साफ सफाई के इंतजाम किए जाए। इसके अलावा LED लाइट्स नस्ब करते हुए रोशनी का इंतजाम किया जाए। कब्रिस्तान में मौजूद प्लेटफॉर्म्स और रास्तों को साफ किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत के बाद बल्दिया मुलाजमीन की जानिब से सफाई का नज्म किया जा रहा है। बल्दिया कमिश्नर के हमरा मुस्लिम कब्रिस्तान के दौरे के मौके पर बल्दिया ओहदेदार और कमिश्नर CC मोहम्मद इरफान अहमद मौजूद थे। राशन कार्ड के लिए मी सेवा मराकज पर जायद फीस, जायद रकम की वसूली पर मी सेवा लाइसेंस मनसूख करने ओहदेदारों का इंतबाह। रियासती हुकूमत ने मी सेवा ऑपरेटर्स को हिदायत दी कि वो ऑनलाइन राशन कार्ड दरख्वास्त दाखिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार से सिर्फ 50 रुपये वसूल करें। बताया जाता है कि बाज़ मी सेवा मराकज पर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के लिए जायद पैसे वसूल किए जा रहे। ओहदेदारों ने इंतबाह दिया कि शिकायत पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार जायद फीस की वसूली पर मी सेवा हेल्पलाइन 1100 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तैयार की गई। एतराज हो तो राब्ता किया जाए। एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार। पसमानदा तबकात की भलाई व तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम जरूरी। सिर्फ एक बिल की मंजूरी और मरकज को रवानगी काफी नहीं। MLC के कविता। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने मुस्लिम कब्रिस्तानों का शब बरात के पेश नजर किया दौरा, जारी की हिदायतें, खुसूसी इक़दाम जंगजू तरीके पर जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।